ایک وقت تھا جب ایک خواب نے جنم لیا اور اس خواب نے ایک سلطنت کی بنیاد رکھی۔ وہ خواب صرف ایک انسان کا نہیں تھا، وہ ایک قوم کا خواب تھا۔ لیکن ہر آغاز کے بعد ایک امتحان ضرور آتا ہے اور ہر طاقت کو ایک دن آزمایا جاتا ہے۔ اب وقت بدل چکا ہے اور حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ ایک دور ختم ہو رہا ہے اور ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ ذمہ داری اب ایک نئے نام پر آ چکی ہے اور ہان ایک نام نہیں، ایک آزمائش ہے۔ وہ صرف ایک بیٹا نہیں، وہ ایک مستقبل ہے۔ ایک ایسا مستقبل جو یا تو سلطنت کو مزید مضبوط کرے گا یا اسے ہمیشہ کے لیے خطرے میں ڈال دے گا۔ دشمن پہلے سے زیادہ طاقتور ہیں۔ وہ صرف میدان میں نہیں بلکہ سوچ میں بھی حملہ کر رہے ہیں۔ ہر طرف خطرہ ہے، ہر طرف بے یقینی ہے، اور سب سے بڑا خطرہ اندر چھپا ہوا ہے۔ جب اپنے ہی میں بدل جائیں تو تلوار بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ جب اعتماد ٹوٹ جائے تو جنگ اور بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حالات سے نہیں ڈرتے، وہ حالات کو بدل دیتے ہیں، اور ہان انہی میں سے ایک ہے۔ وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں، وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں، وہ رکنے والوں میں سے نہیں۔ وہ لڑے گا، ہر قدم پر لڑے گا، ہر مشکل کے خلاف لڑے گا، چاہے دشمن سامنے ہو یا چھپ کر وار کرے۔ وہ ہر سازش کو توڑے گا، وہ ہر رکاوٹ کو ہٹائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ جنگ صرف زمین کے لیے نہیں، یہ جنگ عزت کے لیے ہے، یہ جنگ بقا کے لیے ہے، یہ جنگ ایک مستقبل کے لیے ہے، ایک ایسا مستقبل جو آنے والی نسلوں کو یاد رہے گا۔ اب فیصلہ قریب ہے، وقت آ چکا ہے، یا وہ جھکے گا یا سب کو جھکا دے گا، یا وہ ہار مان لے گا یا تاریخ بنا دے گا۔ یہ لمحہ عام نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جو تقدیر بدل دیتا ہے۔ اور ہان اب صرف ایک نام نہیں رہا، وہ ایک طاقت بن چکا ہے۔ ایک ایسی طاقت جو دشمنوں کے لیے خوف ہے اور اپنے لوگوں کے لیے امید۔ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، اب صرف آگے بڑھنا ہے، یا فتح حاصل کرنی ہے یا سب کچھ قربان کرنا ہے۔ ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے، ایک نئی طاقت ابھرنے والی ہے، ایک نئی کہانی لکھی جائے گی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اصل امتحان شروع ہوتا ہے، جہاں ہر فیصلہ ایک نئی جنگ کو جنم دیتا ہے، جہاں ایک غلط قدم سب کچھ ختم کر سکتا ہے۔ اور ہان کے لیے اب راستہ آسان نہیں رہا۔ ہر طرف دشمن ہے، اور ہر دشمن پہلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ صرف طاقت سے نہیں لڑ رہا بلکہ چالاکی سے بھی مقابلہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، یہ ذہنوں میں بھی لڑی جاتی ہے، اور جو ذہن کی جنگ جیت جائے وہی اصل فاتح ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا اورہان اس امتحان سے گزر پائے گا، یا حالات اسے جھکنے پر مجبور کر دیں گے؟ ہر طرف دباؤ بڑھ رہا ہے، ہر لمحہ ایک نیا خطرہ سامنے آ رہا ہے۔ دوست اور دشمن میں فرق کرنا مشکل ہو چکا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب اصل قیادت سامنے آتی ہے۔ قیادت وہ نہیں جو آسان وقت میں نظر آئے، قیادت وہ ہے جو مشکل وقت میں راستہ دکھائے۔ اورہان کو اب صرف لڑنا نہیں بلکہ سوچنا بھی ہے۔ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے، کیونکہ ایک غلطی پورے نظام کو ہلا سکتی ہے۔ لیکن وہ رکے گا نہیں، وہ جھکے گا نہیں، وہ ٹوٹے گا نہیں۔ وہ ہر مشکل کا سامنا کرے گا، ہر چیلنج کو قبول کرے گا، اور ہر رکاوٹ کو پار کرے گا، کیونکہ اس کے اندر وہ آگ ہے جو بجھ نہیں سکتی، وہ جذبہ ہے جو۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل کہانیاں کلائمیکس کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ جب جنگ ختم ہوتی ہے تو اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے، اور ہر زخم ایک نئی کہانی سناتا ہے۔ اور ہان نے جنگ تو لڑ لی،
लेकिन अब उसे इस जंग के नताइज का सामना करना है। हर फैसला अब उसके सामने खड़ा होगा, हर कुर्बानी अब उसे याद दिलाई जाएगी, और हर वो शख्स जो उसके साथ था या उसके खिलाफ था, सबका हिसाब होगा। क्योंकि क़यादत सिर्फ जीतने का नाम नहीं, क़यादत इस बात का नाम है कि जीत के बाद क्या किया जाए। और हान को अब सिर्फ एक सिपाही नहीं रहना, उसे एक हुक्मरान बनना है। एक ऐसा हुक्मरान जो इंसाफ करे, जो फैसले करे और जो अपनी कौम को एक सिमत दे। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि दुश्मन खत्म नहीं हुए, वो सिर्फ छुप गए हैं और मौके का इंतजार कर रहे हैं। हर साया अब एक खतरा बन चुका है, हर खामोशी एक नई साजिश हो सकती है, और हान को हर लम्हा चौकस रहना होगा, क्योंकि एक लम्हे की गफलत सब कुछ बदल सकती है। लेकिन यही वो मकाम है जहां असल अजमत जन्म लेती है, जब एक इंसान सिर्फ लड़ने वाला नहीं रहता, बल्कि एक सोच बन जाता है, एक नजरिया बन जाता है। और हान अब एक नजरिया बन रहा है, एक ऐसा नजरिया जो आने वाली नस्लों को रास्ता दिखाएगा। यह सिर्फ एक सल्तनत की कहानी नहीं, ये एक मिशन है, एक मकसद है, और एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हर इख्तिताम एक नए आगाज को जन्म देता है। और हान का सफर अभी शुरू हुआ है, और आने वाले दिन इसकी असल पहचान बनाएंगे। ये वक्त है एक नए बाब का, ये वक्त है एक नई तारीख लिखने का, और दुनिया देखेगी कि एक नाम किस तरह सल्तनत बन जाता है। और हान, एक नाम जो अब सिर्फ तारीख नहीं बल्कि तकदीर बनने वाला है। और यही वो मकाम है जहां एक इंसान की पहचान बदलती है, जहां नाम सिर्फ नाम नहीं रहता बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाता है। और हान अब इस मकाम पर खड़ा है जहां हर कदम तारीख लिख रहा है, हर फैसला आने वाले कल को शक्ल दे रहा है। ये सिर्फ आज की बात नहीं, ये आने वाले कल की बुनियाद है। वो कल जो नस्लें याद रखेंगी, वो कल जो मिसाल बनेगा। लेकिन हर मिसाल कुर्बानी मांगती है, हर कामयाबी कीमत मांगती है, और हान को भी वो कीमत अदा करनी होगी, चाहे वो कीमत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। क्योंकि सल्तनतें सिर्फ बनाई नहीं जाती, उन्हें संभाला भी जाता है, और संभालना बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। अब उसके सामने सिर्फ दुश्मन नहीं, अब उसके सामने जिम्मेदारियां हैं, लोगों की उम्मीदें हैं, उनका एतमाद है, और एक ऐसा बोझ जो हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन औरहान वो है जो इस बोझ को उठाने के लिए तैयार है। वो थकेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर वो यकीन है जो हर मुश्किल को आसान बना देता है। वो जानता है कि रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, आखिर में जीत उसी की होती है जो हिम्मत नहीं हारता। और यही उसकी असल ताकत है, एक ऐसी ताकत जो तलवार से ज्यादा मजबूत है, एक ऐसा हौसला जो हर खौफ से बड़ा है, और एक ऐसा मकसद जो उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। यह कहानी सिर्फ जंग की नहीं, यह कहानी हौसले की है, यह कहानी यकीन की है, यह कहानी इस इंसान की है जो हार मानना नहीं जानता। और दुनिया जल्द देखेगी कि एक इंसान किस तरह तारीख बदल देता है, और किस तरह एक नाम हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। और हान अब सिर्फ एक किरदार नहीं, वो एक हकीकत बन चुका है। और यही वो मकाम है जहां इंसान की असल पहचान सामने आती है, जब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना शुरू करता है। और हान अब इसी मरहले में दाखिल हो चुका है। वो जान चुका है कि क़यादत सिर्फ ताकत का नाम नहीं, क़यादत जिम्मेदारी का नाम है। ऐसी जिम्मेदारी जो हर लम्हा इंसान को आजमाती है, जो हर फैसले को मुश्किल बना देती है और हर रास्ते को कांटों से भर देती है। लेकिन यही कांटे असल रहनुमा को मजबूत बनाते हैं। और हान ने अब ये सच कबूल कर लिया है, वो अब आसान रास्ते तलाश नहीं करता, वो मुश्किल रास्तों को अपना बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि अजमत हमेशा मुश्किल रास्तों के बाद मिलती है। अब इसके सामने सिर्फ एक दुश्मन नहीं बल्कि कई दुश्मन हैं, कुछ वो जो सामने खड़े हैं और कुछ वो जो छुपकर वार कर रहे हैं। यही वो जंग है जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उसमें दुश्मन नजर नहीं आता, लेकिन इसका वार सबसे ज्यादा गहरा होता है। और हान को अब हर लम्हा तैयार रहना होगा,
हर आवाज पर गौर करना होगा, हर हरकत को समझना होगा, क्योंकि अब एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान बन सकती है। और यही वो दबाव है जो अक्सर लोगों को तोड़ देता है। लेकिन ओरहान उस दबाव को बर्दाश्त कर रहा है। वो उसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना रहा है। और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। वो हालात से नहीं डरता। वो उन्हें समझता है और फिर उन्हें बदल देता है। यही फर्क है एक आम इंसान और एक रहनुमा में। एक हालात का शिकार होता है और दूसरा हालात को बदल देता है। ओरहान अब दूसरा रास्ता इख्तियार कर चुका है। वो अब सिर्फ रद्दमल नहीं देगा, वो खुद हालात को कंट्रोल करेगा। वो खुद फैसले करेगा और उन्हीं फैसलों के जरिए अपनी तकदीर लिखेगा। लेकिन तकदीर लिखना आसान नहीं होता। इसके लिए हौसला चाहिए, सब्र चाहिए और सबसे बढ़कर यकीन चाहिए। ओरहान के पास ये सब कुछ है। लेकिन फिर भी रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि हर कदम पर नया चैलेंज सामने आएगा। हर मोड़ पर नई आजमाइश हो गई और हर आजमाइश उसे मजीद मजबूत बनाएगी, लेकिन साथ ही उसे मजीद तन्हा भी करेगी। क्योंकि क़यादत का एक सच ये भी है कि जितना ऊपर जाओगे उतने ही कम लोग साथ रहेंगे और आखिर में इंसान को खुद ही खड़ा होना पड़ता है। ओरहान को भी ये हकीकत समझ आ रही है। वो जान रहा है कि हर कोई हमेशा साथ नहीं रहेगा। कुछ लोग छोड़ जाएंगे, कुछ लोग बदल जाएंगे और कुछ लोग दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन इस सब के बावजूद उसे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि रुक जाना इसके लिए मुमकिन नहीं। वो अब एक ऐसे मकाम पर है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब या तो वो कामयाब होगा या सब कुछ खो देगा। और यही वो मकाम है जहां असल हिम्मत की जरूरत होती है। ओरहान इस हिम्मत को अपने अंदर महसूस कर रहा है। वो जानता है कि ये सफर मुश्किल है, लेकिन वो ये भी जानता है कि यही सफर उसे वो बनाएगा जो वो बनने वाला है। एक रहनुमा, एक मुहाफिज और एक ऐसा नाम जो लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। लेकिन इस सब के लिए उसे कुर्बानियां देनी होंगी। ऐसी कुर्बानियां जो आसान नहीं होंगी, ऐसे फैसले जो दिल के खिलाफ होंगे। लेकिन यही फैसले उसकी असल पहचान बनाएंगे, क्योंकि तारीख हमेशा उन्हीं को याद रखती है जो मुश्किल फैसले लेते हैं। ओरहान भी उन्हीं में शामिल होने वाला है। वो अपने हर खौफ का सामना करेगा, वो अपने हर शक को खत्म करेगा और वो हर उस चीज। और यही वो मकाम है जहां इंसान की असल पहचान सामने आती है, जब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना शुरू करता है। ओरहान अब इसी मरहले में दाखिल हो चुका है। वो जान चुका है कि क़यादत सिर्फ ताकत का नाम नहीं, क़यादत जिम्मेदारी का नाम है। ऐसी जिम्मेदारी जो हर लम्हा इंसान को आजमाती है, जो हर फैसले को मुश्किल बना देती है और हर रास्ते को कांटों से भर देती है। लेकिन यही कांटे असल रहनुमा को मजबूत बनाते हैं। ओरहान ने अब ये सच कबूल कर लिया है। वो अब आसान रास्ते तलाश नहीं करता, वो मुश्किल रास्तों को अपना बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि अजमत हमेशा मुश्किल रास्तों के बाद मिलती है। अब इसके सामने सिर्फ एक दुश्मन नहीं बल्कि कई दुश्मन हैं। कुछ वो जो सामने खड़े हैं और कुछ वो जो छुपकर वार कर रहे हैं। यही वो जंग है जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उसमें दुश्मन नजर नहीं आता, लेकिन इसका वार सबसे ज्यादा गहरा होता है। ओरहान को अब हर लम्हा तैयार रहना होगा, हर आवाज पर गौर करना होगा, हर हरकत को समझना होगा, क्योंकि अब एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान बन सकती है। और यही वो दबाव है जो अक्सर लोगों को तोड़ देता है। लेकिन ओरहान उस दबाव को बर्दाश्त कर रहा है। वो उसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना रहा है। और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। वो हालात से नहीं डरता। वो उन्हें समझता है और फिर उन्हें बदल देता है। यही फर्क है एक आम इंसान और एक रहनुमा में। एक हालात का शिकार होता है और दूसरा हालात को बदल देता है। ओरहान अब दूसरा रास्ता इख्तियार कर चुका है। वो अब सिर्फ रद्दमल नहीं देगा,
वो खुद हालात को कंट्रोल करेगा। वो खुद फैसले करेगा और उन्हीं फैसलों के जरिए अपनी तकदीर लिखेगा। लेकिन तकदीर लिखना आसान नहीं होता। इसके लिए हौसला चाहिए, सब्र चाहिए और सबसे बढ़कर यकीन चाहिए। और हान के पास ये सब कुछ है। लेकिन फिर भी रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि हर कदम पर नया चैलेंज सामने आएगा। हर मोड़ पर नई आजमाइश हो गई और हर आजमाइश उसे मजीद मजबूत बनाएगी, लेकिन साथ ही उसे मजीद तन्हा भी करेगी। क्योंकि क़यादत का एक सच ये भी है कि जितना ऊपर जाओगे उतने ही कम लोग साथ रहेंगे और आखिर में इंसान को खुद ही खड़ा होना पड़ता है। और हान को भी ये हकीकत समझ आ रही है। वो जान रहा है कि हर कोई हमेशा साथ नहीं रहेगा। कुछ लोग छोड़ जाएंगे, कुछ लोग बदल जाएंगे और कुछ लोग दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन इस सब के बावजूद उसे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि रुक जाना इसके लिए मुमकिन नहीं। वो अब एक ऐसे मकाम पर है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब या तो वो कामयाब होगा या सब कुछ खो देगा। और यही वो मकाम है जहां असल हिम्मत की जरूरत होती है। और हान इस हिम्मत को अपने अंदर महसूस कर रहा है। वो जानता है कि ये सफर मुश्किल है, लेकिन वो ये भी जानता है कि यही सफर उसे वो बनाएगा जो वो बनने वाला है। एक रहनुमा, एक मुहाफिज और एक ऐसा नाम जो लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। लेकिन इस सब के लिए उसे कुर्बानियां देनी होंगी। ऐसी कुर्बानियां जो आसान नहीं होंगी, ऐसे फैसले जो दिल के खिलाफ होंगे। लेकिन यही फैसले उसकी असल पहचान बनाएंगे, क्योंकि तारीख हमेशा उन्हीं को याद रखती है जो मुश्किल फैसले लेते हैं। और हान भी उन्हीं में शामिल होने वाला है। वो अपने हर खौफ का सामना करेगा, वो अपने हर शक को खत्म करेगा और वो हर उस चीज